Good morning students, welcome again in digital classes, and today I am here for classes 4th, 5th, 6th and 7th. Dear student, first I would like to tell you the thing why I am making this combined videos. Importance of these videos are you can miss in one video, from one video 2 and 3 classes can also you can say they can also study with them. Simple way I am telling means basic information I am telling, and I have got 2 large terms one by one, and that is very important for all the classes. Dear student, this topic is also in 7th standard, that is related to the fraction and decimal, and that same topic included in 6th standard, fraction and decimal. Same topic is also included in 5th standard, fraction and decimal, and in 4th standard I think fraction is included and decimal is not included. Okay, but I think content is available for you, so you can, due to COVID-19 you are at home, so then you have utilized your time. That is our motto, and take all the parts. Okay, means one by one you have watched the video, try to solve all the questions related to that videos. Okay, and now I'm telling you in before videos, means earlier I told you in that videos about the fraction, their types, their conversion and order. Okay, comparison, also fundamental operation means addition, subtraction, multiplication and division, and with the BODMAS rule means simplification. So I think last topic I told you, but still our topic is not completed. Why? Yes, in 6th standard topic is completed because fraction is the separately given, in 5th standard also separately given, but 7th standard fraction and decimal is included in one chapter. So today I am telling the decimal, so according to your class you can use it. Okay, now I am telling you about the decimals. How can we define? First, dear student, first I telling the introduction of the decimal. Dear student, first one more important thing. This is this term, otherwise you can say this name. Okay, arises, I think you can say from this is a Latin word. Okay, and this decimal comes from Latin word, and word is decimo. Decimo represent the 10th part. 10th part of a whole. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी आपकी संख्या होती है उसका 10th पार्ट क्या होता है? डेसिमल होता है. ये उसका अपना हम ये कह सकते हैं उसकी हिस्ट्री है डेसिमल की. हिस्ट्री को आप समझें कि डेसिमल जो वर्ड आया वो कहाँ से आया? डेसिमो से. कहाँ से आया? डेसिमो से. और इसका मतलब क्या होता है? 10th पार्ट ऑफ होल. कंप्लीट कोई आपके पास आइटम ऑब्जेक्ट है उसका आप 10th पार्ट कर लो, और वो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? डेसिमो कहलाएगा. So now I am telling the definition of decimal. How can you define? This decimal is a fraction. देखो पहले वाले टॉपिक को इस टॉपिक से हम रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तभी जाके कुछ सीखेंगे. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, decimal is a fraction. Decimal is a fraction. Decimal is a fraction in which denominators are in the form of 10, 100, 1000 etc. मीन्स उन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल बोल सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? 10 होते हैं, 100 होता है या 1000 होता है. राइट, फ्रैक्शन से एक
टर्म को आपने निकाल लिया है, और वो कौन सी टर्म है? फ्रैक्शंस है। ये डेसिमल होती क्या है? फ्रैक्शंस होती है, राइट। ये नोट करके चलें। मीन्स डेसिमल कहाँ से फॉर्म आती है? फ्रैक्शन से आती है। और कौन सी फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर कौन कौन से होते हैं? या 10 होता है, या फिर 100 आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप बोल सकते हैं 1000, 10,000, लाख, करोड़, जिसमें आप जो भी बोलना चाहिए। मीन्स फ्रैक्शन मैंने नोट किया 1/10, दिस इज ए फ्रैक्शन, बट वी कैन से दिस इज ए डेसिमल। वाई? बिकॉज इट कैन बी इजीली कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म। इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द 1/10, मीन्स 1/10 मतलब 10th हम उसको बोलते हैं 10th। नोट कर लेना इसको, 10th 1/10 बोलते हैं फ्रैक्शन में। और इसको हम जैसे क्या बोलेंगे? डेसिमल फॉर्म में क्या बोलेंगे? 10th। जनरली रीड कैसे करेंगे? 0.1। और देखें आप 1/100, इसका हम डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा? 0.01। और बोलेंगे क्या इसको? हंड्रेड्स, राइट। मीन्स सिंपल हम 100 बोलते हैं, और यदि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म को, तो हम पूरी को क्या बोलेंगे? हंड्रेड्स। बोलते नहीं बोलते? एस लगाते हो, अच्छी बात है, 10,000 बोल दो, ऐसे बोल दो आप। और आप ये भी देखते हैं, आप इसको जनरली क्या बोलते हैं? 1/4 नहीं बोलते क्या? आप ये TS लगाते हैं। मीन्स ये आप ये कह सकते हैं कि अभी ये किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में, बट वी कैन इजीली कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म, क्योंकि अपने को बनाना है क्या? इसको 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट तो करना है, कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से डेसिमल इज ए फ्रैक्शन in which denominators are in the form of 10, 100, 1000, etc. This is the basic introduction related to the decimal. Now, dear student, during the representation of decimal, yeah, when we writing the decimal, so decimal has two parts. Decimal number has two parts. अब देखो डेसिमल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो नोट कर लेते हैं। पहले सिंपल वे में हम बात करते हैं। डेसिमल 345.76, दिस इज ए डेसिमल नंबर, राइट। अब यहाँ पे देखो, बिफोर द डेसिमल एंड आफ्टर द डेसिमल दो पार्ट आते हैं, डेसिमल से पहले एंड डेसिमल के बाद में। आप ये बोल सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, राइट साइड ऑफ डेसिमल, ऐसे भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में आते हैं उनको तो हम कौन से पार्ट बोलते हैं? दिस इज द होल पार्ट, ओके। एंड राइट साइड में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। होल पार्ट जो डेसिमल से क्या आता है? राइट साइड की तरफ आता है, लेफ्ट साइड की तरफ आता है। और डेसिमल पार्ट है वो कौन सा आता है? डेसिमल पॉइंट या पॉइंट के बाद में जस्ट आगे, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट, राइट साइड। आप इस डायरेक्शन को लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? राइट साइड। जनरली नाउ हाउ टू रीड, साथ साथ ये भी कर लेते हैं कि रीड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को। दिस स्टूडेंट होल पार्ट एज यूजुअल एज वी स्पीक, मीन्स जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? दिस इज 345, सो राइट हियर 345। ये तो हो गया किसका? होल पार्ट का। देन स्पीक डेसिमल नंबर, तो आप इसमें यहाँ लगाओगे डेसिमल, तो लिखे डेसिमल। पॉइंट भी दे सकते हो आप, नेमिंग करते हैं इसकी, जब आप रीड करते हैं तो क्या लगाएंगे? पॉइंट बोल दें, या फिर इसकी जगह क्या आप राइट कर सकते हैं? डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेसिमल भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल आप साथ में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। 345 डेसिमल आप बोलोगे तब भी चलेगा, 345 पॉइंट बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट एंड देन राइट हियर 76। अब ये नोट करें आप, मीन्स आफ्टर द डेसिमल, मीन्स जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो उस समय जो डेसिमल, जो पार्ट, डेसिमल पार्ट को हम सेपरेटली बोलते हैं। सेपरेटली मीन्स पर्टिकुलर डिजिट को पर्टिकुलर बोलते हैं। एक एक डिजिट को हम बोलते हैं, 7 को 7 बोलेंगे, 6 को 6 बोलेंगे। आपने इसको 76 बोल दिया, इट मीन्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। 76 होता ही नहीं डेसिमल के बाद, राइट। सो हाउ टू रीड द डेसिमल नंबर? इन दिस वे यू कैन राइट एंड रीड 345.76,
और नोट करें आप, एग्जाम्पल लेके देखें। 102 पॉइंट, इसको कैसे लिखोगे आप? इसको बोलोगे 102 पॉइंट लगाएं या डेसिमल, 102.045। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीड और राइट कैसे किया जाते हैं डेसिमल नंबर। सिंपल फॉर्म है, डेसिमल पार्ट होल पार्ट आता है, उसको तो आप एजिट जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलें, और डेसिमल पार्ट को सेपरेटली आप क्या करना है, बोलना है। आ गया समझ में? अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी हम लार्ज फॉर्म में चलते हैं, ठीक है? कैसे चलेंगे? इसको हम लेके चलते हैं कि डेसिमल को हम जब बोलते हैं, डेसिमल नंबर हम जब बताते हैं तो सिंपल सी बात है, न्यू नंबर हम सीख रहे हैं तो उसके लिए हम प्लेस वैल्यू हम बात करेंगे, हम यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू की हम बात करते हैं, राइट? बट अभी रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर में, एक्सपेंड फॉर्म हम यहाँ पे ऑल्सो डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर अभी सीखनी है अपने को। इतना आपने सीखा डेसिमल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है, राइट? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर कि प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे हम राइट करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट हम कैसे राइट करते हैं। देखो सिंपल सा है, पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, राइट? क्या बोलते हैं? डेसिमल। अब देखो प्लेस वैल्यू चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होल पार्ट का प्लेस वैल्यू चार्ट अलग आएगा, डेसिमल पार्ट का अलग आएगा। कैसे? पहले हम बात कर लेते हैं राइट साइड की तरफ, और देन वी विल गो ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड इधर चलते हैं। डेसिमल के जस्ट जो फर्स्ट जो डिजिट आता है उसको हम बोलते हैं टेंस। इसको आप बोल सकते हैं 1/10, या फिर ब्रैकेट में आप बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, टेंस। जस्ट सेकेंड आफ्टर द डेसिमल, नोट करते रहना, इसको हम बोलते हैं 1/100, या आप बोलेंगे हंड्रेड्स, THS लगा दो 100 की, और क्या है। फिर हम बात करते हैं थाउजेंड, थर्ड पार्ट वो आएगा 1/1000, इसको हम बोलेंगे थाउजेंड्स, THOUSANDTHS लगा दो आप। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 3 प्लेस तक, राइट? अब लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिजिट देखें आप, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस। सेम वे होल नंबर जब बाद में बात की है तो सेम वही प्लेस वैल्यू चार्ट होगा जो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। वंस, देन टेंस, मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, इसको किससे करना है, 10 से, देन 100, ओके? तो इसको किससे करेंगे, 100 से, देन 1000, तो इसको किससे करेंगे, 1000 से, ओके? नोट डाउन हियर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द प्लेस वैल्यू। सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, और इजीली आपको देखना है एग्जांपल्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं डेसिमल का, और क्वेश्चन आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 112.48, कि इस डिजिट में, इसमें जो भी डिजिट्स हैं सबकी क्या राइट करनी है आपको, प्लेस वैल्यू राइट करनी है। सेपरेट ही राइट करेंगे। अब देखो यहाँ से मैं आंसर बताता हूँ। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर बिफोर द डेसिमल क्या आता है, होल पार्ट, एंड आफ्टर द डेसिमल क्या आता है, डेसिमल पार्ट। तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा ही नहीं होगा। सो 1 की क्या होगी, 100। वाई? क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, डेसिमल के जस्ट लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। सो 1s, 10s और 100, तो 1 कौन से प्लेस में होगा, 100 पे। सो 100, 1 फिर कौन से पे है, 10 पे, 2 किस पे है, 1 पे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से। अब हम बात करते हैं डेसिमल की, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं, इधर समझा देता हूँ। डेसिमल के जस्ट बाद में कौन सा आता है, टेंस। मीन्स जो आपकी डिजिट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/10, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4/10। आंसर इज कंप्लीटेड। या तो आप 4 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, और डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखेंगे, 0.4। ये भी बताया जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके? नेक्स्ट 8 की प्लेस वैल्यू हम चार्ट निकालते हैं।
तो 8 देखो कितनी प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, मीन्स 8 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम, हंड्रेड्स, 1/100 से, सॉल्यूशन कितना आएगा 1/100. इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर इन दिस वे. पर्टिकुलर यदि आपको बोला जाता है, पर्टिकुलर डिजिट के लिए बोला जाता है कि फ्रॉम दिस नंबर फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तब तो आपको 8 की निकालनी है. और कुछ नहीं बोला जाता है, कंप्लीट नंबर की आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, तो आप इसमें हमें प्लेस वैल्यू राइट करते चलिए. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म. हाउ टू फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स उस जो आपको नंबर दे रखा है उसको बस जस्ट आपको एक्सपेंडेड करना है. कैसे, यहाँ पे देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म. गिवन डेसिमल नंबर आपको मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे 742.057. ये लो, 3 नंबर तो मैंने बिफोर द डेसिमल ले लिए, 3 डिजिट मैंने ले लिए बिफोर द आफ्टर द डेसिमल. अब इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी राइट करनी है. ओके, देखो कैसे करते हैं. सिंपल है, प्लेस वैल्यू चार्ट का आप यूज करेंगे और राइट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म. और कैसे राइट करना है वो बताते हैं हम. 7, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. आप कहोगे सर 7 हो गया डेसिमल के जस्ट कितनी डिजिट है, 1s 10s 100 प्लेस पे है, तो इसकी होगी 700 प्लस 4 को हम बोलेंगे 40, 2 प्लस, देन आप आ जाओ डेसिमल के जस्ट बाद में 0, तो आप क्या लिखोगे 0.10. क्या बोलोगे 0.10. बट आई टोल्ड यू इन फर्स्ट चैप्टर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, होती है या नहीं होती. 0 की हम राइट ही नहीं करते, प्लेस वैल्यू नहीं करते ना, छोड़ देते हैं. तो आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज 0/10 कितना होता है, 0 होता है. सो यू हैव लेफ्ट इट. नाउ चूज नेक्स्ट 5/100, बिकॉज ये 5 कौन सी डिजिट प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आ रहा है समझ में. 7 कौन सी पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे. दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, इफ एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन and convert in decimal number. Second type question, expanded form already given, expanded form given, okay, and convert in या write in decimal, write in decimal. कि आपको जो फॉर्म दे रखी है एक्सपेंडेड फॉर्म, उसको वापस कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है. तो कैसे करें, सिंपल सा है. एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ ही बता देते हैं. चलो, डेसिमल नंबर ले लिया मैंने 8,000 प्लस 700 प्लस 4 प्लस 5/10 प्लस 7/1000. ये लो, ये आपके पास नंबर आ रहा है. इस नंबर को आपको वापस कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सिंपल सा है. कैसे देखो, 8,000 प्लस 700 प्लस 4, पहले इसको कन्वर्ट करें आप डेसिमल में. इजी वे है. कितनी जीरो है, 1. सो 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा दो राइट साइड से. राइट साइड से लिया तो कितना, 1 डिजिट पे 5 आ रहा है, और देन उसके बाद में क्या लगा दो, डेसिमल. अब इस डेसिमल को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट, कितनी जीरो है, 3. सो आफ्टर द 3 प्लेस वी पुट द डेसिमल फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके, फ्रॉम द राइट साइड से आपको काउंट करना है, लेफ्ट साइड की तरफ चलना है. ओके, और 3 प्लेस के बाद में क्या करना है, आपको डेसिमल पुट करना है. जबकि डिजिट कितनी है आपके पास, 1, तो आप राइट करेंगे 700, 3 प्लेस हो गए, और देन पुट डेसिमल एंड 0. ये हो गया कन्वर्ट करना. अब इसको सिंपली हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. 8,000 प्लस 700 प्लस 4 कितना हो जाता है, 8,704. और डेसिमल को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.507. ऐड करके देख सकते हो आप. फर्स्ट प्लेस पे 5 आएगा, सेकंड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे क्या है, 7. फर्स्ट प्लेस पे 5, सेकंड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे 7. और इन दोनों को आप एट लास्ट ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,704.507. ये लो बेटा. इस वे में आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी और फॉर्म लेके चलते हैं.
how to convert a fraction in decimal and how to convert a decimal in fraction. That is very important topic. Okay, और यहाँ से हम क्वेश्चन अब पुटअप करेंगे आगे, और यही इंपॉर्टेंट अपने पास। ये सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नोट करवा दी कि डेसिमल होता क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करते हैं, और प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब चीज़ें हमने सीख ली अभी तक, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू, हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन। चलो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट डाउन करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट सिंपल फॉर्म में आपको लेके चल रहा हूँ। ओके, इफ डिनोमिनेटर कम इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 एंड 10,000 लाख, जिस फॉर्म में भी आए मीन्स डिनोमिनेटर सेम रहेगा। कैसे? 3/10, या फिर आपके पास सेकंड टाइप क्वेश्चन आ जाता है 15/10। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 175/100। फोर्थ टाइप ऑफ एग्जाम्पल आप यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ 674/1000 एंड फाइनल एंड लास्ट 1000। इतनी ले लेते हैं एग्जाम्पल, काफ़ी है। चेक करें यहाँ पे, एवरी फ्रैक्शन हैज द डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000। सब की सब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, या तो 10 में है, या फिर 100 में है, या फिर किस फॉर्म में, 1000 फॉर्म में है। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट ए डेसिमल? ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सॉरी गाइस स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने पॉइंट। हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म, यदि आपके डिनोमिनेटर फॉर्म है वो 10 या 100 या फिर 1000 फॉर्म में आए तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिंपल वे आई एम टेलिंग यू। ओके, लुक हियर, डियर स्टूडेंट, काउंट द जीरोज इन डिनोमिनेटर। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? कितने जीरो हैं वो काउंट करें। इसमें जीरो कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 1। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3। सिंपल काउंट कर लिए। ओके, नाउ पुट द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर आपने पुट कर लिया, सबका न्यूमरेटर पुट कर दो 15, इसका भी पुट कर दो 175, इसका पुट कर दिया 675, इसका पुट कर दिया 1054। ओके, नाउ पुट द डेसिमल इन न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू द जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। मीन्स 1 है तो 1 प्लेस के बाद में जस्ट आफ्टर द 1 प्लेस यू पुट द डेसिमल। 2 है तो आफ्टर 2 प्लेस, 3 है तो आफ्टर द 3 प्लेस यू पुट द डेसिमल, otherwise point. So here 1 point is 1 0 is here. So from the right side we count and go to left side. So यहाँ से काउंट किया तो फर्स्ट डिजिट पे कौन आ गया? 3 आ गया, और हमने क्या कर दिया? डेसिमल पुट कर दिया। सो योर सॉल्यूशन इज 0.3। बट फॉर द लुकिंग, है ना, थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास वो डिजिट तो है नहीं तो उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं? 0 लगा देते हैं। इफेक्ट कुछ पड़ता नहीं, राइट। सेम एज हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1। सो आफ्टर द 1 प्लेस, सो 1 पे क्या आ गया? 5 एंड देन पुट द डेसिमल, सो आंसर इज 1.5। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2। सो आफ्टर द 2 प्लेस 1 2 put the decimal, and here also how many zeros are there? 3. So after the 3 place 1 2 3 and then put decimal, and here how many zeros are there? 1 2 3. So 1 2 3 and put the decimal. In that way you can easily convert a fraction into decimal if the fraction having denominator as 10, 100, 1000. Okay, next type of question related to the same concept. If denominator does not come in the form of 10, 100 and 1000, यदि डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 फॉर्म में नहीं आता है तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करें, ये देखें आप। जैसे आपके आ गया 1/2, 1/5,
1/4, ये इतने एग्जाम्पल बहुत होंगे। 1/8। अब आप कहोगे सर आपने 1 ले रखा है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने चलो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ पे मैंने कुछ और ले लिया जैसे मान लो कि 5। दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन एंड ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर बट concept is same. Denominator does not come in the form of 10, 100 and 1000, राइट है ना। सो सिंपल वे देखो, 2 टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन प्रोसेस, गिव द डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 8। दैट आई एम नॉट, आई थिंक आई डिडंट टेल यू हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन, अदरवाइज आई टोल्ड यू। देखना आपको डिवाइड आता है तो आप डिवाइड प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? विदाउट डिवाइड कैसे करते हैं? सिंपल फॉर्म, यू हैव कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इन दिस फॉर्म, मीन्स यू हैव कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 10, 100 एंड 1000। सिंपल वे, इजीली है, और ये स्मॉल नंबर्स के लिए ही पॉसिबल है, लार्ज नंबर के लिए तो आपको डिवाइड करना ही है। मीन्स कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 10, अदरवाइज 100, अदरवाइज 10,000, जो भी आपको फॉर्म आती है वो। अब आप ये देखें कि 2 इजीली कन्वर्ट किस में हो जाता है? 2 कन्वर्ट हो सकता है 10 में। कैसे? इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई 5, सो अगेन यू मल्टीप्लाई बाई 5, सो वी विल गेट 5/10 एंड आंसर इज 0.5, राइट। यही एग्जाम्पल आप इसका लेके चलें, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो न्यूमरेटर को भी करना किससे? 2 से। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आंसर इज 0.4। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो 4 को मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे? अब ये बात है यहाँ पे कि सर आपको तो पता चल रहा है, हमें तो नहीं पता चलेगा। देन दिस मेथड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रंस, राइट। ये मेथड तभी आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, या आपकी समझ में कम आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 25 से मल्टीप्लाई होगा। सो फॉर दिस स्टूडेंट, हियर यू कैन चेक, गिव द डिवाइड पर्टिकुलर नंबर, जैसे 4 है, 4 को आपको 10 में कन्वर्ट करना है तो गिव द डिवाइड इन 10। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर छोड़ दो। 100 में देखिए, 100 में देंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 25 टाइम। मल्टीप्लाई इट 75/100 एंड हियर डेसिमल 0 2, सो आफ्टर द 2 प्लेस वी पुट द डेसिमल, राइट। सेम एज 5/8, सो 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 125 से करेंगे, तो इसको भी किससे करेंगे? 125 से करेंगे। कितना आएगा? 625/1000 एंड आंसर इज 0.625। दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हियर आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दिस मेथड, सो यू हैव लेफ्ट इट, ओके, नो प्रॉब्लम। Different type of method I am telling you here, and that is the accurate and all are using this, okay. This is a, you can say, basic method. ये सिंपल फॉर्म मैंने आपको इसीलिए बताई कि क्लास 4th और 5th के अंदर इसी बेसिक क्वेश्चन से इतनी शॉर्ट नंबर्स हैं उन्हीं के लिए होता है। लार्ज क्लासेस, हायर जो क्लासेस हैं 6th 7th है, उनके लिए फॉर्म नहीं है, उनके लिए डिवीजन फॉर्म में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ओके। नोट करें इनको। ओके, 3/7, this is a fraction. So how to convert this fraction into decimal? So dear student, here you can apply the division process, and everyone know that 3 is not divisible by 7. So what we do? You have put the 0 here, and if you are putting 0 in dividend, so put the decimal in quotient. स्टार्ट यहाँ से कर लेना। देखो पहले चेक करना है कि 3 है वो 7 से डिविजिबल होता ही नहीं, मीन्स इफ द डिविडेंड स्मॉलर देन डिवाइजर, डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा आता है, तो प्रोसेस क्या करनी है? पुट द 0 हियर एंड पुट द डेसिमल इन क्वोशिएंट, सिंपल। नाउ गिव द डिवाइड। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7 बिकॉज दिस डिविडेंड इज लार्जर देन डिवाइजर। अब बड़ा हो गया तो डिविजिबल हो सकता है। हाउ मेनी टाइम? स्पीक द टेबल ऑफ 7 टिल द 30, okay. So 7 4 20, 7 4 28, bring down 2,
अब यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि फाइंड द राइट द डेसिमल नंबर ओके इन 3 प्लेस 2 प्लेस 1 प्लेस। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। दीदी 2 प्लेस क्या बोला जाता है, तो 2 प्लेस फाइंड आउट करें आफ्टर द डेसिमल। 3 प्लेस का पूछा जाता है तो 3 प्लेस तक चलेंगे। चलो चलते हैं। नाउ अगेन एक बार डेसिमल लगाने के बाद में नाउ यू कैन पुट 0 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एक बार आपने डेसिमल लगा दिया तब ये मत करना कि सर अब 0 आप कहाँ से लेके आए। एक बार 0 लगाने का मतलब ये है आप यहाँ से समझ में आए कि हमने कितनी 0 है नोट किए, आप कितनी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। ओके ये सब 0 अपने आप पुट हो गए। एक 0 पुट करने का मतलब है आपने बहुत सारे 0 पुट कर लिए, डेसिमल पुट कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ ब्रिंग डाउन 0 20 7 2 14 माइनस किया 6 ब्रिंग डाउन नेक्स्ट 0 60 8 7 56 ब्रिंग डाउन सो रिमाइंडर 4। सो ये हो गया आपके 3 प्लेस का आफ्टर द डेसिमल 3 प्लेस। सो solution is here 0.428. In this way you can easily convert the fraction into decimal, right student? And try to convert these numbers, these fraction in your rough notebook. I am giving here second 5 upon 6, third 8 upon 9, third 1 upon 7, second, third and fourth, fifth 5 upon 11. So you have convert these fraction into decimal using the division process. Okay, and in next video we will discuss about the convert of decimal into fraction and types of decimals like and unlike, how to convert like decimal into unlike and unlike decimal into like. After that we will also solve the fundamental operation related to the decimal comparison also. Okay, so I think this is also the last topic. So today what we have discussed in the video, first notice it, we have defined it decimal number. After that place value, expanded form and other things are there, how to convert a fraction into decimal. 3 types of conversion I told you here, and I hope you are getting all the points. Thank you for watching.